to the pathology and medicine. So at this level, I will tell you only the basic concept of these different topics, and we will talk about it in detail when you are in third year and finally year in pathology and in medicine. ठीक सो ये जो टॉपिक है ये ज़्यादातर पैथोलॉजी और मेडिसिन में डिटेल में डिस्कस होंगे फिर इस क्लास में हम इसको इन शॉर्ट थोड़े थोड़े से पॉइंट्स उसके जो मेन पॉइंट्स है या जो बेसिक कंसेप्ट्स है उसको हम डिस्कस करेंगे ठीक है Before going into our topic, we will discuss about some terminologies. I hope most of you know that as you are going into the end of the respiratory module, most of you will know these terminologies, but I will revise it shortly. The first one is eupnea. The eupnea is the normal respiratory pattern is called eupnea. As all of you know that normal respiratory pattern here is inspiration or inspiration and expiration. So inspiration or inhalation, expiration or exhalation. जो normal respiratory pattern है जो अब हम respiration कर रहे हैं, we call it apnea. That is the normal respiratory rhythm. जो हमारे पास normal respiratory rhythm है उसको हम apnea कहते हैं, ठीक है? Then comes the abnormal respiratory rhythm. The abnormal respiratory rhythm. उसमें कौन कौन से आते हैं? उसमें सबसे पहले आता है हमारे पास tachypnea. Tachypnea. अगर हमारे पास रिस्पायरेटरी रेट ज्यादा हो गया है तो उसको हम क्या कहते हैं टेकेप्निया कहते हैं इंक्रीज इन रिस्पायरेटरी रेट इज कॉल्ड टेकेप्निया इंक्रीज इन रिस्पायरेटरी रेट इज कॉल्ड टेकेप्निया ठीक सो जैसे कि हम हार्ट में कहते हैं कि द इंक्रीज इन हार्ट रेट इज कॉल्ड टेकिकार्डिया इंक्रीज इन हार्ट रेट इज कॉल्ड टेकिकार्डिया ठीक सो same as the terminology here that is tachypnea increase in respiratory rate is called tachypnea एडल्ट्स में अगर हमारे साथ रिस्पायरेटरी रेट 30 से या 25 से ज्यादा हो जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं टेकेप्निया कहते हैं पीडियाट्रिक पॉपुलेशन में हमारे पास अगर रिस्पायरेटरी रेट 50 से ज्यादा है तो उसको हम फिर टेकेप्निया कहते हैं ठीक है नाउ कम the opposite one of the tachypnea is bradypnea bradypnea is decrease in respiratory rate decrease in rate of the respiration is called bradypnea the first one was normal when there is increase in normal we call it tachypnea when the respiratory rate decreases then normal we call it bradypnea now in adults when the respiratory rate is less than 10 or 12 we call it bradypnea so one is apnea, another one is tachypnea, the third one is bradypnea, and then apnea. Apnea means cessation of breathing or temporary arrest of breathing. And if it is permanent arrest of breathing, then we call it the brain death. So the temporary arrest of breathing is called apnea. हमारे पास नॉर्मल ब्रीथिंग हो रही है उसको हम apnea कह रहे हैं जब ब्रीथिंग रेट हमारे पास ज्यादा हो जाता है उसको हम tachypnea कहते हैं जब ब्रीथिंग रेट कम हो जाता है तो उसको हम bradypnea कहते हैं और जब हमारे पास रिस्पायरेटरी एफर्ट्स नहीं होते हैं और हमारे पास रिस्पायरेशन जो है वो स्टॉप हो जाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं एपनिया कहते हैं ठीक है हम जब हॉस्पिटल चेकअप में हॉस्पिटल में क्लिनिकली किसी को अगर आपने ये लेबल करना है कि ये एक्सपायर हो गया कि नहीं हो गया तो वन ऑफ द स्टेप इज एपनिया ठीक है एपनिया दैट इज द सेसेशन ऑफ ब्रीथिंग अगर ये टेम्पररी है तो ठीक है लेकिन अगर ये परमानेंट है then we call it the it is one of the sign of brain stem death ठीक है क्योंकि हमारे पास जो रिस्पायरेटरी सेंटर है they are located in the brain stem ठीक है हम क्लिनिकली जब चेक करते हैं तो तीन साइंस चेक करते हैं जनरल पॉइंट है ये एक है एपनिया दैट इज परमानेंट सेसेशन ऑफ ब्रीथिंग और दूसरा हम उसको कोमा में वो होता है और कोमा चेक करते हैं कि कोमा है कि नहीं है उसका अपना भी तरीका है थर्ड वन इज द ब्रेन स्टेम रिफ्लेक्सेस ठीक है तो द फर्स्ट वन उसमें क्या है एपनिया है अगर एपनिया टेम्पररी भी हो सकता है और परमानेंट भी हो सकता है अगर ये परमानेंट है सो देन इट इज ब्रेन डेथ ठीक है next one is dyspnea dyspnea is difficulty in breathing difficulty in breathing is called dyspnea ठीक है जैसे कॉमन सन terminologies जिदा बशान उनको वो dysphagia difficulty in eating zaman सरसा जिकलम का breathing वो is dyspnea difficulty in breathing is called dyspnea
Then come the periodic breathing. The periodic breathing is the abnormal respiratory rhythm. इसमें फिर दो आ जाते हैं. One is chain stroke breathing and another is pipe breathing. Chain stroke breathing को हम इधर डिस्कस करेंगे. ठीक है. After that is the hypoventilation and the hyperventilation. The hypoventilation and hyperventilation. The hypoventilation means that here is decrease in pulmonary ventilation and here is decrease in force of respiration. Temporary अपने unconscious में होगा. ठीक. मख्तिमोंगे दो slides वाइज. Then you will know about the apnea. फिर अगर कोई क्वेश्चन होगा फिर हम उसके बारे में बात करेंगे. ठीक है. आगे आपको ये जो आपका क्वेश्चन है क्लियर हो जाएगा. So then come the hypoventilation. The hypoventilation is decrease in pulmonary ventilation. जो हमारे पास लंग्स के अंदर गैसेस एक्सचेंज होते हैं तो उसकी जो है ये उस गैसेस एक्सचेंज जो है वो डिक्रीज हो जाते हैं ड्यू टू सर्टेन पैथोलॉजी. Another one is hyperventilation. There is the increase in the आवाज से इशू जब इंडिविजुअल मसले तवक्कुल जान में से लोगों के जैसा मसला रखा मोस्टली क्लास को ठीक है. हाइपरवेंटिलेशन में हमारे पास जो है ये गैसेस एक्सचेंज जो है ये इसमें फिर ज्यादा हो जाते हैं. ठीक है. ये फिर कुछ डायग्रामेटिक रिव्यू है हमारे पास. जैसे मैंने आपको कहा अगर हमारे पास नॉर्मल रिस्पायरेटरी पैटर्न है तो उसको हम इतना कहते हैं. अगर रिस्पायरेटरी रेट हमारे पास ज्यादा हो जाता है और जल्दी जल्दी हम सांस लेना शुरू कर देते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं रैपिड ब्रीथिंग और टेक एपनिया. अगर हमारे पास रिस्पायरेटरी एफर्ट जो है वो कम हो गया स्लो हो गया तो उसको हम फिर क्या कहते हैं ब्रेड एपनिया कहते हैं. एपनिया दैट इज अ स्ट्रेट लाइन. जैसे कि आपको मूवीज में और ड्रामों में देखते हैं स्ट्रेट लाइन आ जाता है तो देयर इज नो ब्रीथिंग. एंड नो ब्रीथिंग अगर ये परमानेंट है दैट इज अ साइन ऑफ brainstem death. ठीक है. Another one is chain stroke breathing. We'll discuss about it in the coming slide. The last one is the Kussmaul respiration. Kussmaul respiration. It is also called deep and rapid. It is also called gasping type of respiration. हमारे पास जब gasping में कोई होता है तो उस तरह की respiration करता है. तो जो Kussmaul respiration हमारे पास होता है इसमें हम डीप रिस्पायरेशन करते हैं और रैपिड करते हैं. ठीक है. ये जो सारे एग्जांपल है ये आप अगर YouTube में उसकी वीडियोस में दे दे तो ये शॉर्ट क्लिप उसमें होगी 30-40 सेकंड्स की उसमें क्लिप्स है तो ये फिर बहुत ज्यादा क्लियर हो जाते हैं. अब अगर हम लाइव कॉलेज मतलब क्लास कॉलेज में ले रहे हैं तो फिर मैं आपको सारे बता रहा था कि कैसे कैसे रिस्पायरेशन में कितनी कैसे होता है इतने कैसे होता है चेन स्ट्रोक वाले कैसे होते हैं तो ये आप शॉर्ट वीडियोस में चेक कर सकते हैं. ठीक है. Now what is periodic breathing? हमारे पास जो नॉर्मल रिस्पायरेटरी पैटर्न है उसको हम इतने कहते हैं. The abnormal or uneven respiratory pattern or rhythm is called periodic breathing. What is periodic breathing? It is the abnormal respiratory breathing or abnormal respiratory pattern or respiratory rhythm. अगर हमारे पास ब्रीथिंग में कोई मसला है और जो हमारे पास पैथोलॉजी की वजह से जो रिस्पायरेटरी पैटर्न है उसको हम क्या कहते हैं पीरियडिक ब्रीथिंग कहते हैं. पीरियडिक ब्रीथिंग हमारे पास दो तरह की है. एक है चेन स्ट्रोक ब्रीथिंग एंड सेकंड वन इज Biot's breathing. ठीक है. We will discuss about the chain stroke breathing. What is chain stroke breathing? The chain stroke breathing is what is the difference between the Kussmaul respiration and the tachypnea? ठीक है. अगला क्वेश्चन दें. So हमारे पास जो जब tachypnea होता है the breathing is rapid. इसमें हमारे पास respiration, inspiration और expiration का जो normal time पीरियड है वो सेम होता है लेकिन वो स्पीड अप हमारे पास हो जाता है. ठीक है. ये डीप ब्रीथिंग नहीं होती है हमारे पास. डीप ब्रीथिंग नहीं होती है.
कुशमन रिस्पिरेशन में हमारे पास जो है इसमें डीप ब्रीथिंग होती है, रैपिड इधर भी है, तो ब्रीथिंग इज रैपिड हियर इन टेकेपनिया। कुशमन रिस्पिरेशन में भी हमारे पास इट इज रैपिड ब्रीथिंग, लेकिन इधर जो है हमारे पास इट इज डीप ब्रीथिंग। डीप ब्रीथिंग हमारे पास कैसे होता है, बड़ी किस्म وبدو بسالي وزرزر لي وبدو بتسهلي فما هم عليك أو زرزر وزرزر لي كيس يشو ده سي زرزر سالي يشو كلير شو هذيك الزرزر لي هو ديب بقى سيدا اللي بلكي زون سرا ساس بزرزر لي وديب breathing. Now what is chain stroke breathing? It is a type of periodic breathing which is characterized by rhythmic hyperapnea and apnea. Rhythmic hyperapnea and apnea. Some of the basic sentence answer. It is a type of periodic breathing which is characterized by rhythmic hyperapnea and apnea. ये जो टाइप ऑफ रिस्पिरेटरी पैटर्न है इसमें हमारे पास दो अल्टरनेट पैटर्न्स होते हैं, एक है हाइपर एपनिक पीरियड and the second one is apneic period. The one is hyper apneic period and the second one is apneic period. ठीक है, एक हाइपर एपनिक पीरियड है और एक है एपनिक पीरियड. What is hyper apneic period? This is a type of chain stroke breathing. This is a type of chain stroke breathing जिसमें हमारे पास ये है hyperapnea and this is followed by apnea which is cessation of breathing. Hyperapnea followed by apnea, cessation of breathing. Hyperapnea followed by apnea. एपनिया तो आपको पता है कि हमारे पास एपनिया क्या चीज है, एपनिया में सेसेशन ऑफ ब्रीथिंग होती है, देयर इज स्टॉपेज ऑफ ब्रीथिंग, टेम्पररी स्टॉपेज ऑफ ब्रीथिंग इधर है. हाइपर एपनिया में हमारे पास क्या है, देयर इज अ ग्रेजुअल इंक्रीज इन द रेस्पिरेटरी रेट एंड इन द डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन followed by a gradual decrease in the respiratory rate and gradual decrease in depth of respiration. इसको हम क्या कहते हैं, हाइपर एपनिया कहते हैं. सेशन ऑफ ब्रीथिंग इज एपनिया. लेकिन ये जो हमारे पास आप इस टेबल को देख के, डायग्राम को देख के, इसमें हमारे पास जब ये ऊपर आगे जा रहा है तो हमारे पास रेस्पिरेटरी रेट में जो डेप्थ जो है वो ज्यादा हो रही है, डेप्थ हमारे पास ज्यादा हो रहा है. एट अ सर्टेन पॉइंट एक्सीड फिर हमारे पास डेप्थ कम हो जाता है. दिस इज कॉल्ड हाइपर एपनिया और दिस इज कॉल्ड एपनिया. ठीक है, तो हमारे पास जो ये पीरियडिक रिस्पिरेशन की एक टाइप है जिसमें हमारे पास देयर इज रिथमिक हाइपरएपनिया एंड एपनिया, वी कॉल इट चेन स्ट्रोक ब्रीथिंग. वी कॉल इट चेन स्ट्रोक ब्रीथिंग. ये जो हाइपर एपनिया है इसमें हमारे पास हाइपर वेंटिलेशन होती है. हाइपर वेंटिलेशन होती है, क्या मतलब है इस बात का, हमारे पास कि जो हाइपर वेंटिलेशन होती है देयर इज इंक्रीज गैसियस एक्सचेंज. During this period, there is increased gaseous exchange in the lungs. While here, there is no gaseous exchange because there is no respiratory effort. Also, there is increased gaseous exchange during the hyperapnea. We call it the hyperventilation. So, there is a type of periodic breathing which is characterized by 60 seconds of hyperventilation followed by apnea. There is a cycle of gradually increasing depth and frequency followed by then it is followed by gradual decrease in depth and frequency. Now this increase in the depth and frequency is called waxing, while this decrease in the depth and frequency is called waning. General term that this is called waxing, while this is called waning. Dip means George or Sari, George or Sadu. George or Sari. Mungi pela solução dessa bandeira ou do dessa hora e dança de oxigênio estou com a type on the dessa freedom.
समझ रहा है आवाज। ओके, causes the stroke breathing comes to circulation, mid-brain lesion, head trauma, stroke, infant during sleep, especially high altitude, central sleep apnea, and elderly. There is a lot of causes क्या बोलता है सिर्फ तो दोनों पता होगी कि what is stroke breathing, simple definition का स्क्वायर भी है causes की जरूरत नहीं है। हाँ, what is the mechanism of stroke breathing? Respiratory centers are located in the brainstem and it responds to the partial pressure of carbon dioxide in the blood. Dr. Sutapata. So what happens during the chain stroke breathing? Due to certain pathology, which may be due to head trauma, stroke, midbrain lesion, any pathology. Suppose there is some pathology due to which the person is having chain stroke breathing. So what happens during the chain stroke breathing is that when a person overbreathes, there is blowing of too much of carbon dioxide, leading to decrease in carbon dioxide and increase in oxygen tension and oxygen partial pressure of oxygen. हमारे पास हाइपर वेंटिलेशन हो रही है ड्यू टू सम पैथोलॉजी, हमारे पास हाइपर वेंटिलेशन हो रही है। जब हाइपर वेंटिलेशन होगी तो मैंने आपको कह दिया कि हाइपर वेंटिलेशन का मतलब ये है कि हमारे पास गैसियस एक्सचेंज ज्यादा होगी। जब गैसियस एक्सचेंज ज्यादा हो रहा है तो उसका मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा बाहर जा रहा है और ऑक्सीजन ज्यादा अंदर आ रहा है। ठीक है, तो अंदर हमारे पास ऑक्सीजन ज्यादा हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास कम हो जाएगा। ब्रेन का रिस्पायरेटरी सेंटर जो है रिस्पॉन्ड टू कार्बन डाइऑक्साइड। सो व्हेन दीस pulmonary blood then go to the respiratory center in the brainstem, it inhibits the respiratory centers. It inhibits the respiratory centers क्योंकि हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड कम है और ऑक्सीजन ज्यादा है, तो इनहिबिशन ऑफ रिस्पायरेटरी सेंटर हमारे पास हो जाती है। जब इनहिबिशन ऑफ रिस्पायरेटरी सेंटर हमारे पास हो जाती है तो इट लीड्स इनटू एपनिया। इट कॉजेस टेम्पररी सेशन ऑफ ब्रीथिंग। ठीक है, क्या हो गया हमारे पास? ये वाज हाइपरवेंटिलेशन। हाइपरवेंटिलेशन की वजह से हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कम हो गया और ऑक्सीजन ज्यादा हो गया। पल्मोनरी ब्लड और पल्मोनरी फ्लो हमारे पास जब ऊपर जाएगा ब्रेन स्टेम में तो वो उधर रिस्पायरेटरी सेंटर को इनहिबिट करेगा। जब ये रिस्पायरेटरी सेंटर को इनहिबिट करता है तो क्या होगा? हमारे पास एपनिया होगा। जब एपनिया हमारे पास हो जाता है, हियर इज नो रिस्पायरेटरी एफर्ट्स, तो हमारे पास लंग्स में टेंशन मत لا يقرأ ومو يخرب شيء استفاد لازم بالغم كوفا. हाँ, जब हमारे पास एपनिया हो गया तो एपनिया की वजह से हमारे पास फिर रिस्पायरेटरी एफर्ट्स नहीं हो रहे हैं तो क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो जाएगा और ऑक्सीजन जो है हमारे पास कम हो जाएगा। जब कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो जाता है और ये ब्लड फिर रिस्पायरेटरी सेंटर में जाएगा तो फिर ये अगेन एक्टिवेट द रिस्पायरेटरी सेंटर एंड पर्सन अगेन स्टार्ट्स ब्रीथिंग। so it is a rhythmic respiratory pattern। स्टॉप एंड स्टार्ट पैटर्न हमारे पास इस तरह होता है। कैसे होता है कि जब हाइपरवेंटिलेशन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाता है जो रिस्पायरेटरी सेंटर को इनहिबिट करता है। इट रिजल्ट्स इन एपनिया। एपनिया लीड्स टू इंक्रीज इन द कार्बन डाइऑक्साइड। इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे पास है वो क्या करता है? रिस्पायरेटरी सेंटर को फिर एक्टिवेट करता है। सो अगेन he starts breathing and this pattern goes on। A person overbreathes, this blowing of too much of carbon dioxide leading to decrease in carbon dioxide and increase in oxygen, which will result in inhibition of the respiratory center and inhibit respiration. It is followed by opposite cycle which result in decrease in oxygen and increase in carbon dioxide। तो कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो जाता है तो रिस्पायरेटरी एफर्ट्स हमारे पास दोबारा शुरू हो जाते हैं। That was about chain stroke breathing। Then come the sleep apnea। You know what is apnea? Apnea is cessation of breathing। स्लीप एपनिया में हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास जो एपनिया होता है सेसेशन ऑफ ब्रीथिंग होती है दैट इज ड्यूरिंग स्लीप। ठीक है,
So it is a temporary stoppage of breathing that occurs repeatedly during sleep. Temporary stoppage of breathing that occurs repeatedly during sleep, and it is a very common uh, problem in our population. It is also called sleep disorder breathing. Sleep disorder breathing. This patient will present with loud snoring during sleep, followed by apnea. जदीद वो किस्म प्रेजेंटेशन ये खुदा सी चीज़ी पक्वला माने जब ये जब मतलब अगर इनका कोई पार्टनर है रूम में तो मतलब तो सुबह का संग रूममेट है ये रूम के तो जो दूसरा रूममेट होता है वो उसकी ये कंप्लेन करता है कि ये बहुत ज्यादा स्नोरिंग करता है ठीक है स्नोरिंग कैन बी प्राइमरी और पैथोलॉजिकल प्राइमरी हमारे पास ये है कि कुछ लोग तो वैसे ही बहुत ज्यादा स्नोरिंग करते हैं लेकिन उनकी कोई पैथोलॉजी नहीं होती है सेकेंडरी जो है उसमें हमारे पास कोई पैथोलॉजी होती है जैसे कि हमारे पास स्लीप एपनिया में स्नोरिंग होती है ठीक है इसकी फिर ट्रीटमेंट करनी पड़ती है क्योंकि उसकी अपनी कॉम्प्लिकेशन होती है सो इसकी प्रेजेंटेशन दो तरह के होते हैं एक तो ये है कि ये जो बंदा है या ये बार बार मतलब देवो जबरदस्ती बार बार रहेगा बेवकूफ न बार बार रहेगी सेकंड जो उसका भी पार्टनर होगा रूममेट होगा तो ये कंप्लेन करेगा कि ये बहुत ज्यादा लाउड स्नोरिंग करता है और फिर उसकी स्नोरिंग थोड़ी टाइम के लिए गायब हो जाती है फिर दोबारा स्नोरिंग शुरू कर देता है फिर ये दोबारा स्टॉप हो जाते हैं सो दीज आर द मेजर कंप्लेंट्स ऑफ दीज पेशेंट्स स्लीप एपनिया को अगर बिल्कुल द जेनेटिक रिंग ट्रांसफर की और ये बेकार है ज्यादा पर मुझे समय कॉलेज की जरूर मेटांगो आयो कि दा स्पेरे वाले स्पेरे दे बंदे तंगे अमरी सब तकलीफी है जो कम मसला नो मेटानी ना वसरम पाजल these episodes of apnea has to last up to 10 seconds स्लीप एपनिया को हम तब इसको हम कंसीडर करेंगे जब हमारे पास जो एपनिक स्पेल्स का जो टाइम पीरियड है दैट इज अप टू 10 सेकंड्स दैट इज अप टू 10 सेकंड एक हमारे पास वॉलंटरी एपनिया होते हैं वॉलंटरी एपनिया होते हैं खलक नैसी या मुकाबले के जिसको के साथ सब बंदोल दैट इज वॉलंटरी एपनिया अगर ये मंगो को क्या मुसा बन को एक शो अगर डिफरेंट शो सोना साथ लगो शो सोना कॉल दा ड्यूरेशन डिफरेंटली Kalau zamu sara yau kasu diga ko hoke the apnea up to 10 second last figi so we call it sleep apnea the time duration is related to the specific 10 second पे प्रकार दे दीजिए और the frequency there is a सेवा it may occur up to 300 times each night typically with 300 to 500 times per night detection so what is sleep apnea it is the session of breathing during sleep the duration is almost up to 10 seconds así está su framework y se te dice zan banda te akroni yo lo second da para breathing stop in popular fazabi sleep apnea is classified into two types one is obstructive sleep apnea and second one is central sleep apnea central sleep apnea de un metodo andazo shi de tam yo bekam kam kazi the obstructive sleep apnea is of the clinical features or the clinical presentation of the sleep apnea is these patients will present with headache हेडेक में प्रेजेंटेशन इसलिए होती है कि इसको नाइट टाइम की स्लीपिंग जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है तो इस वजह से ये हेडेक की कंप्लेंट के साथ आ जाती है सेकंड वन दे विल कम विद कंप्लेंट ऑफ डे टाइम स्लीपिंग जाहिर है अगर रात को नींद नहीं होगी तो फिर क्या होगा सुबह को सब सोए रहेंगे ठीक है एक ये कंप्लेंट लोगों का अच्छा another one is poor concentration the fourth one is nocturia that is passing of urine during night times अगर इस पेशेंट्स की हम स्लीप एपनिया को फिर मतलब उसकी ट्रीटमेंट करते हैं उसकी करेक्शन करते हैं तो नॉर्चूरिया जो है ये हमारे पास रिजॉल्व हो जाता है ठीक है और जो मैंने दूसरा बता दिया कि अगर उसका कोई पार्टनर है तो कंप्लेंट करता है कि बहुत ज्यादा लाउड स्नोरिंग करता है इज फॉलोड बाय अ पीरियड ऑफ साइलेंस देन snoring then period of silence so what is obstructive sleep apnea as the name indicates, it occurs due to respiration, due to obstruction in the respiratory tract. Respiratory tract हमारे पास जो है उसमें कुछ obstruction हो जाती है उसकी वजह से हमारे पास obstructive sleep apnea होता है कैसे होता है नॉर्मली हमारे पास नोज के थ्रू अगर हम एयर इनहेल कर रहे हैं तो हमारे पास कम्स द फेरिंक्स larynx and trachea जो हमारे पास मसल्स ऑफ द फेरिंक्स है बिहाइंड द ओल और सॉफ्ट पैलेट हमारे पास जो मसल्स ऑफ द फेरिंक्स है
जब हम दिन को हमारे पास जो मसल ऑफ द पेरेंट्स है, हम एक्टिव है, हम वी आर नॉट स्लीपिंग, तो फिर हमारे पास जो पेरेंट्स की मसल है दे है वो स्पेसिफिक टोन, उसकी टोन जो है वो ज़्यादा होती है और ये ओपन हो जाती है, ये ओपन होती है, ठीक है। तो हमारे पास एयर जो है वो उसके थ्रू इजीली पास होते हैं। ये सब लोगों में नहीं होते लेकिन कुछ लोगों में होते हैं। कौन से लोगों में, तो काफी इस फैक्टर हम डिस्कस करेंगे अभी। लेकिन जब सेम पर्सन अगर रात को सोता है और ये ड्यूरिंग स्लीप क्या हो जाता है, हमारे पास जो मसल्स ऑफ द पेरेंट्स हैं उसकी टोन हमारे पास डिक्रीज हो जाती है। मसल ऑफ द पेरेंट्स की टोन जो हमारे पास है वो रात को डिक्रीज होती है। जब ये टोन डिक्रीज होगा तो देयर इज डिफिकल्टी इन पासिंग ऑफ द एयर, देयर इज डिफिकल्टी इन द पासिंग ऑफ द एयर। नॉर्मली the muscle of the pharynx has a specific tone at which these airway is open and it allows the passage of the air. During sleep, what happens is there is decrease in the tone of the muscle of the pharynx, so there is difficulty in passing of the urine, in passing of the air, which results in the obstructive sleep apnea. Obstructive sleep apnea. इसमें हमारे पास obstructive sleep apnea के chances हमारे पास कितने ज्यादा होते हैं? नंबर फर्स्ट वन इज मेल जेंडर। मेल जेंडर, फीमेल के निस्बत मेल में ये बीमारी ज्यादा होती है। सेकंड वन इज ओबेसिटी, ओबेसिटी या ओवरवेट। उसमें क्या होगा, हमारे पास इधर मसल बल्क और फैट्स वगैरह ज्यादा होते हैं, तो जब रात को आप सो रहे हैं तो ये हमारे पास प्रेशर ज्यादा इसके ऊपर एग्जर्ट होता है। जब प्रेशर ज्यादा एग्जर्ट होगा तो टोन जो है मसल का वो डिक्रीज होता है। सेम इज द कांसेप्ट ऑफ द adenites and enlarged tonsils, and as one of you told that it is genetic predisposition also, it can be genetically transferred from male to from parents to the offsprings. इसमें हमारे पास जो कंप्लेंट्स होते हैं वो होते हैं कि हमारे जब ये पेशेंट सुपाइन पोजीशन में होते हैं, सुपाइन पोजीशन में Karchidiniya ki samali ne diya was mutasad result bandi. So we tell them to lie down on the right side or on the left side. That is हम लग आराम में लगेंगे. That is the same pathology as I told you. What happens that during sleep there is decrease in the upper airway tone. Muscles of parents जो है उसकी tone कम हो जाती है. जब तो tone कम होगी तो हमारे पास airway जो है उसमें passage of air जो है उसको resistance ज़्यादा होगी. जब resistance ज़्यादा होगी it will lead to obstruction. जब obstruction होगी तो मैंने आपको जब obstruction की वजह से क्या होगा, snoring होगी. There will be loud snoring. Obstruction की वजह से loud snoring होगी. A certain point will be reached that there will be air entry कम हो रही है. एयर एंट्री कम हो गई है हमारे पास, इट विल लीड टू एपनिया. एपनिया की वजह से क्या होगा, देयर इज डिक्रीज ऑक्सीजन एंड इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड. हाइपोक्सिया और हाइपरकार्बिया हमारे पास होता है. हाइपरकार्बिया इज एक्सेटेटरी फॉर ब्रेन स्टेम रिस्पिरेटरी सेंटर. तो जब ये रिस्पिरेटरी सेंटर को एक्टिवेट होगा और उसको अराउजल, पेशेंट की अराउजल हो जाती है. जब अराउजल हो जाती है तो हमारे पास अपर एयरवे टोन जो है aji khama kharapas in start port of activation change rapasi keen yes okay this solution upper airway tone to doesn't perceive also when the upper airway tone increases it reduces and the breathing starts normally. Then sir again breathing starts ही कल से दिया हो देखिए ना दोबारा साइकिल जगह जान रिपीट करें. ठीक है तो the central obstructive sleep apnea, the pathology was in the respiratory tract. The pathology is in the respiratory tract. Or there is some factors outside the respiratory tract that is causing the blockage of the respiratory tract. And central sleep apnea is the name indicates the problem is inside the respiratory centers. The problem is in the brainstem. मसला हमारे पास सेंट्रल स्लीप एपनिया में किधर होता है, ब्रेन में होता है, ब्रेन स्टेम में होता है. उधर से हमारे पास द ब्रेन इज नॉट मेकिंग एनी एफर्ट्स ऑफ इंस्पायरेशन. रिस्पायरेटरी सेंटर से हमें कोई रिस्पायरेटरी एफर्ट्स की जो है उसकी कोई सिग्नल नहीं आते हैं ड्यूरिंग स्लीप. सो क्या होता है, सेंट्रल स्लीप एपनिया होता है. पेशेंट अफेक्टेड बाय सेंट्रल स्लीप एपनिया may have decreased ventilation even when they are awake. These are some of the causes of central sleep apnea. That is stroke, brain infection, ये जो ब्रेन पैरेन्काइमा टिश्यू की कोई इंफेक्शन हो जाती है. आगे जाके आप पढ़ेंगे देयर इज मेनिंजाइटिस एंड एन्सेफेलाइटिस और ट्यूबरकुलोसिस ऑफ द ब्रेन.
then mass and the brain tumors, cancer. हाई एल्टीट्यूड की वजह से भी हमारे पास सेंट्रल स्लीप अपनिया होते हैं. इसकी ज़्यादा पैथोलॉजी में या पैथोफिजियोलॉजी में जाने की ज़रूरत नहीं है, ये आप आगे जाके पढ़ेंगे थर्ड ईयर में. Any query about the apnea? Apnea किसी क्वेश्चन था? Next one is the hypoxia. Muscle of pharynx पर नाइट के खून की कमी. हाँ. ट्रीटमेंट करने की जरूरत. हाँ. ट्रीटमेंट जिगल फाइनली अतला शेयर हो जाती. Obstructive sleep apnea में हमारे पास respiratory tract जो है उसमें obstruction होती है. ऊपर ब्रेन में कोई मसला नहीं होता है, लेकिन जो respiratory tract है उसमें कोई मसला होगा. तो रिस्क फैक्टर्स उसमें हमारे पास क्या क्या है? ओबेसिटी, ओवरवेट, मेल जेंडर्स, टॉन्सिल्स हमारे पास एनलार्ज टॉन्सिल्स हो सकते हैं. उसके अलावा जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन भी इसके हैं. मैकेनिज्म इसकी क्या है कि हमारे पास व्हेन वी ब्रीथ द एयर, सो द air passes through the nostrils into the nose, then into the pharynx, then larynx, then trachea, and then into the pulmonary tree. That is bronchioles in alveoli. जब ये एयर हमारे पास pharynx से मूव करता है, normally when we are awake, there is the tone of the muscles of the pharynx is normal. तो जब ये टोन नॉर्मल होता है हमारे पास, तो ये respiratory tract ओपन होता है. जब respiratory tract ओपन होगा तो एयर हमारे पास ऐसे भी फ्लो करता है in and out, so the person is breathing normally. लेकिन someone is these risk factors or someone having obstructive sleep apnea, उसका क्या होता है हमारे पास? जब ये स्लीप करता है तो उसके मसल ऑफ द pharynx जो है उसकी टोन कम हो जाती है. जब मसल ऑफ द pharynx ड्यूरिंग स्लीप the tone of the muscle of the pharynx is decreased even in healthier person. अगर आप हमारे पास कोई नॉर्मल बंदा है या कोई स्लीप अपनी वाला है, दोनों के जो है ये टोन ऑफ द मसल ऑफ द pharynx जो है ये कम होते हैं. लेकिन जो स्लीप अपनिया वाले होते हैं उनके फिर एयर जो है वो उसके थ्रू मूव नहीं कर सकता. जब एयर मूव नहीं, एयर जब pharynx की डिक्रीज टोन की वजह से नहीं जाएगा तो हमारे पास क्या होगा? इट विल लीड इनटू द ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया. कि फिर वो डायग्राम है कि क्या क्या होता है आगे. Second, the next topic is hypoxia. Hypoxia is reduced availability of oxygen in tissues. Hypoxia is reduced availability of oxygen in tissues. तो बॉडी के हर एक टिश्यू को जमन सर बकार दे ऑक्सीजन बकार दे. कल की जमन सर ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी को टिश्यू लेवल में कमी कि तम सो हाइपोक्सिया. जब ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी हमें हमारे टिश्यू लेवल पे कम हो जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं? हाइपोक्सिया कहते हैं. Another terminology is anosmia, that is absence of oxygen. If a patient having hypoxia, ये हमारे पास कौन से symptoms के साथ present करेगा? ये छोटा सा डायग्राम किसने बना लिया उसकी. तो rat is led to bed. अर्ली प्रेजेंटेशन उसकी अगर कोई हाइपोक्सिया है, ऑक्सीजन की कम है, तो ये प्रेजेंट करेगा रेस्टलेसनेस के साथ. सेकंड वन एंजाइटी, and the third one is tachycardia and tachypnea, that is increase in heart rate and respiratory rate. लेकिन जब ये प्रोलॉन्ग हो जाता है हमारे पास तो फिर ये प्रेजेंट करता है ब्रेडिकार्डिया, डिक्रीज इन हार्ट रेट, एक्सट्रीम रेस्टलेसनेस. ये बहुत ज्यादा इरिटेबल हो जाते हैं, ये एक जगह पे टिक नहीं सकते होता है. एंड dyspnea, that is difficulty and breathing. ठीक है. These are the samples of symptoms of the adults. पीडियाट्रिक की जरूरत नहीं है, वैसे symptoms की भी इस लेवल पे याद रखने की जरूरत नहीं है. The second, now the classification of the hypoxia. There are 4 different types of hypoxia. The number one is hypoxic hypoxia. The second one is anemic hypoxia. The third one is ischemic hypoxia, and the fourth one is histotoxic hypoxia. ये डायग्राम आपने याद रखना है, ये एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है. ठीक है. Hypoxic hypoxia, that is the name indicate, that is the low arterial partial pressure of oxygen.
ब्लड जो है उसमें हमारे पास ऑक्सीजन, आर्टीरियल ब्लड जो है उसमें ऑक्सीजन कंटेंट जो हमारे पास है वो कम होती है। इसमें हमारे पास जो ब्लड होती है उसमें ऑक्सीजन पार्शियल प्रेशर जो है वो क्या होता है, वो कम होता है। पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन में बी डिक्रीज ड्यू टू द हाई एल्टीट्यूड। हाई एल्टीट्यूड की वजह से ये ज्यादा हो सकता है। अल्वीलर हाइपोवेंटिलेशन, गैसेस एक्सचेंज एट द लेवल ऑफ अल्वीलाई हमारे पास कम है, उसकी वजह से ये हाइपोक्सिया हो सकते हैं। डिक्रीज लंग डिफ्यूजन कैपेसिटी, लंग की जो ब्लड सप्लाई है वो कम है, उसकी वजह से ये हो सकती है। अनदर वन इज एबनॉर्मल वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशो। तो हाइपोक्सिया में हमारे पास क्या है, देयर इज डिक्रीज ऑक्सीजन कंटेंट इन द ब्लड। ब्लड के अंदर हमारे पास, आर्टीरियल ब्लड के अंदर हमारे पास ऑक्सीजन कंटेंट जो है वो कम हो जाता है। ठीक है, इसका सेकंड नाम जो है वो सेकंड नेम इसका आर्टीरियल हाइपोक्सिया है। आर्टीरियल हाइपोक्सिया, इसके जो काजेस, टिपिकल काजेस है, दैट इज हाई एल्टीट्यूड। हाई एल्टीट्यूड पे हमारे पास हाइपोक्सिया क्यों होता है, क्योंकि हमारे पास जो एयर हम इनहेल करते हैं उसकी ऑक्सीजन कंटेंट कम होती है, और जब ऑक्सीजन कंटेंट उसकी कम होती है तो अंदर गैस एक्सचेंज जो है वो कम हो जाती है। तो ऑक्सीजन कंटेंट हमारे पास कम हो जाती है, लीडिंग टू हाइपोक्सिया। सेकंड मैंने आपको कह दिया, दैट इज अल्वुलर हाइपोवेंटिलेशन। Alveolar hypoventilation. The third one is decreased lung diffusion capacity, and the fourth one is abnormal ventilation perfusion ratio. Abnormal ventilation perfusion ratio. ठीक है. The second one is anemic hypoxia. Anemic hypoxia. हाइपोक्सिया में हमारे पास ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी जो है वो कम होती है। ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी की कमी की वजह से हमारे पास आर्टीरियल ब्लड में ऑक्सीजन कंटेंट जो है वो कम होता है। ठीक है, अब ये पॉइंट नोट कर लें, ये पॉइंट आप नोट कर ले कि हाइपोक्सिया में हमारे पास ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी कम होती है। ड्यू टू डिक्रीज इन अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन, देयर इज डिक्रीज इन आर्टीरियल कंटेंट ऑफ द ऑक्सीजन। ठीक है, द सेकंड वन इज एनीमिक हाइपोक्सिया। एनीमिक हाइपोक्सिया में हमारे पास ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी जो है दैट इज नॉर्मल। ऑक्सीजन हमारे पास नॉर्मल होता है, लेकिन मसला ब्लड के अंदर होता है। देयर इज द प्रॉब्लम इज इनसाइड द ब्लड, that is decreased total amount of oxygen bound to hemoglobin. That is decreased total amount of oxygen bound to hemoglobin. इधर ऑक्सीजन हमारे पास अवेलेबल नहीं था, इधर ऑक्सीजन अवेलेबल है, लेकिन ऑक्सीजन कैरी करना ब्लड में हीमोग्लोबिन का काम है। तो इधर मसला जो है वो हीमोग्लोबिन में है। या तो हीमोग्लोबिन हमारे पास कम है, या हीमोग्लोबिन में कोई स्ट्रक्चरल डिफेक्ट्स है। ठीक है, या हमारे पास आरबीसी जो है वो कम है। इसकी वजह से हमारे पास ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड इज डिक्रीज। ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड इज डिक्रीज, व्हिच लीड्स टू एनीमिक हाइपोक्सिया। एमसीक्यूज के लिए ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। ठीक है, सो व्हाट आर द टिपिकल कॉजेज ऑफ द एनीमिक हाइपोक्सिया? दैट इज ब्लड लॉस। अगर कोई ब्लड लॉस कर रहा है तो जाहिर है उसकी आरबीसी कम होगी, आरबीसी कम होगी तो हीमोग्लोबिन कम होगा, हीमोग्लोबिन कम होगा तो हमारे पास ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी क्या है, कम हो जाएगी। The second one is anemia. एनीमिया में आपको पता है, मैंने आपके साथ क्लास ली थी इसके बारे में। दैट वाज द लो हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन कम है, सो ऑक्सीजन कैरिंग, ऑक्सीजन बाइंडिंग कम होगी, बाइंडिंग कम होगी तो आगे नहीं ले जा सकेगा। नेक्स्ट वन इज कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग में हमारे पास ये होता है कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड है इसकी ऑक्सीजन की एफिनिटी बहुत ज्यादा है। एफिनिटी ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इज वेरी हाई। तो ये जो है ये का ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है कार्बन मोनोऑक्साइड, और ऑक्सीजन को टिश्यू लेवल पे नहीं जोड़ता है। सो व्हाट इज एनीमिक हाइपोक्सिया? व्हाट इज हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया? हाइपोक्सिया में हमारे पास ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी कम थी। एनीमिक हाइपोक्सिया में हमारे पास ऑक्सीजन की वैल्यू नॉर्मल है,
लेकिन ब्लड की जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है दैट इज डिक्रीज. The third one is ischemic hypoxia, or the second name of it is stagnant hypoxia. Ischemic hypoxia or stagnant hypoxia. इसमें क्या होता है हमारे पास? There is a decreased velocity of blood flow. इधर हमारे पास blood flow जो है वो कम हो जाता है. There is reduced blood flow, and it is also called the stagnant hypoxia. तो इधर हमारे पास blood flow कम होता है. जब blood flow कम होगा तो जाहिर है ब्लड में ऑक्सीजन जाता है. जब ब्लड फ्लो कम होगा तो ऑक्सीजन नहीं जाएगा या कम जाएगा, तो इट विल लीड टू हाइपोक्सिया at tissue level. What are the causes of the stagnant or ischemic hypoxia? That is heart failure. That is heart failure. इसमें कुछ MCQs आते हैं फिर कि अगर हार्ट फेल्यूर है तो आपके पास कौन सी हाइपोक्सिया होती है. तो ये चार एग्जांपल लेते हैं. नॉर्मली वो इस्केमिक हाइपोक्सिया तो उसमें नहीं देते, स्टैग्नेंट हाइपोक्सिया देते हैं. So remember the answer is ischemic or stagnant hypoxia. Another cause is shock. The third one is thrombosis. इसमें हमारे पास जो है थ्रोम्बस बनते हैं, प्लेटलेट बनता है, उसकी वजह से ब्लड जो वेसल्स है उसकी ब्लॉकेज होती है, या कंप्लीट या पार्शियल, तो ब्लड आगे कम जाएगा या नहीं जाएगा, तो उसकी वजह से हमारे पास हाइपोक्सिया होती है. ठीक है. The fourth one is histotoxic hypoxia. That is a failure of the cells to utilize oxygen because cells have been poisoned. इधर हमारे पास ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी नॉर्मल है, ब्लड की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी भी नॉर्मल है, ब्लड फ्लो भी हमारे पास नॉर्मल है, लेकिन जो प्रॉब्लम है इन तीनों में प्रॉब्लम हमारे पास टिश्यू लेवल पे नहीं है. The problem was not in tissue level. Here the problem is at the level of tissues. मसला टिश्यूज में है. ठीक है. Failure of cells to use oxygen because cells have been poisoned. And typical causes of it is cyanide poisoning. Cyanide poisoning. Cyanide poisoning because of it muy usually beginning. The hypoxia money poisoning. Point याद सती heart failure की कमी हो hypoxia की, that is stagnant hypoxia. Second point याद सती hypoxia की oxygen availability normally, oxygen availability कमी, और anemic hypoxia की oxygen availability normally हो मसले वो blood की. ठीक है. There is abnormality in the blood flow, and the fourth one is histotoxic hypoxia. The problem is in the tissues itself. Now the next one is cyanosis. Symptoms इसके sign and symptoms इसके almost same होते हैं, लेकिन अगर कोई specific pathology like heart failure या thrombus formation तो उसकी भी उसमें presentation उसकी associated symptoms भी उसमें हो सकते हैं. ठीक है. Now what is cyanosis? Cyanosis is the diffuse bluish discoloration of skin and mucous membrane. Diffuse bluish discoloration of the skin and mucous membrane caused by excessive. What is the cause of cyanosis? That is excessive amount of deoxygenated hemoglobin in blood or decreased hemoglobin in blood. Cyanosis में हमारे पास, what is cyanosis? It is the bluish discoloration.
Dus er moet een bluish discoloration bij die key, the skin or the mucous membrane. The most common points at which the bluish discoloration occur is that is the nail beds, tip of the finger, tip of the nose, the land etc. So these are the common points at which cyanosis occur. That is skin, mucous membrane, and then the nail beds are the tip of the fingers of both hands and feet, then the tip of the nose, then around the lips. We have the Ogda Bosike that is called earlobes. Earlobes becomes cyanosis. Most commonly by the areas manda presenting. Cause the rhythm there is decreased hemoglobin in the blood. The hemoglobin cause the oxygen carrying oxygen oxygen is the oxygen camera in the cyanosis. Oxygen by the blood the hemoglobin the kamida lessons. There was also the the hemoglobin oxygenation the oxygen hemoglobin the yeah was also hemoglobin commutation. It will lead to cyanosis. Study is something they go to the showroom. This is very sharing. Now, okay, so this is Shanti. Now, then there are two types of cyanosis. One is central cyanosis. Another one is peripheral cyanosis. पहले हम peripheral cyanosis discuss करेंगे. Peripheral cyanosis में हमारे पास extremities are cold and blue due to less blood flow and vasoconstriction of the vessels. Peripheral cyanosis में हमारे पास जो periphery होते हैं वो blue in color होते हैं and second one they are cold क्योंकि उसको blood supply कम होते हैं. Normally ये patient जब हम देखते हैं तो उसके finger tips और nail beds जो है ये bluish in appearance होते हैं. And the nail beds and the fingertips are bluish in appearance and rest of the examination is normal. We call it the peripheral cyanosis. लेकिन जब cyanosis हमारे पास tip of the nose, around the lips, under the tongue और जो air lobes है उसमें होगी फिर उसको हम क्या कहते हैं central cyanosis कहते हैं. The central cyanosis is due to hypoxic hypoxia while the peripheral cyanosis is due to stagnant hypoxia. So query está. मैंने आपको कहा हमारे पास cyanosis is the bluish discoloration of skin and mucous membrane. Then there are two types of cyanosis. The one is peripheral cyanosis, another one is central cyanosis. Peripheral cyanosis and central cyanosis. Peripheral cyanosis में आपने ये याद रखना है, name indicate the peripheries are cyanosed. इसमें हमारे पास there is bluish discoloration of the nail beds at the tip of the finger, tips of the finger. जो हमारे पास हैंड्स और फीट दोनों के हो सकते हैं. ठीक है. रेफरल साइनोसिस में आप हॉस्पिटल सेटअप में हैं, आप चेक कर रहे हैं किसी को साइनोसिस है तो आपने देख लिया कि पेशेंट अदरवाइज नॉर्मल है, उसकी कोई साइनोसिस उसमें नहीं है, लेकिन सिर्फ टिप ऑफ द फिंगर्स एंड नेल बेड्स जो है उसमें साइनोसिस है तो उसको हम क्या कहते हैं? रेफरल साइनोसिस कहते हैं. रेफरल साइनोसिस कहते हैं. Peripheral cyanosis is called by stagnant hypoxia. Peripheral cyanosis is called stagnant hypoxia. Stagnant hypoxia में मैंने आपको कहा कि हमारे पास blood flow में कोई abnormality है. There is reduced blood flow. तो जब आप उसको चेक करेंगे उसमें bluish discoloration होगी, लेकिन जब आप उस tips को touch करेंगे it will be cold. देखो बड़ा पोस्ट में
Peripheral cyanosis में आपके पास क्या होगा? There will be bluish discoloration of the nail beds and the tips of the fingers. Cause of it is stagnant hypoxia. What was stagnant hypoxia? Stagnant hypoxia में हमारे पास जो blood flow था, it was reduced. तो जब blood flow reduce होगा हमारे पास, so an examination it will be cold and touch. ज़ाहिर है कम से blood flow कम आया होगा, so extremities are cold and blue. Rest of the examination is normal. The bulls upon my isosceles cyanosis निश्चय bluish discoloration निश्चय central toenail beds मान दे रहे हो finger tips मान दे रहे हैं. इसमें क्या होता है उसको भी देना लगा जमुसरा the nail beds or finger tips ना लगा tip of the nose, lips, around the lips, शुंडी उड़ीशी, under the tongue, and the next one is other one is earlobes. Earlobes. The cause of it is hypoxia. Hypoxia. So the extremities are warm. Then the blood flow is normal. So the oxygen content, arterial oxygen content is less. So the blood flow is there, but the oxygen content is less. So extremities will be warm. Peripheral to the slip nail beds or tips of the finger involve the central cyanosis along with its other parts of the body like nose, lips, and uh, under the tongue. So, मसला está? الفلوسايد بزمام كده كريو ده اتلكتيسيس او نمونيا ياخدونا ده زروتهم بدي اول ما يعني خير خزمونغا كلاس بلشته بستايك بده زري الفلوسايد نو ما ستشته يونا خاص بدي سنش تاريخي وده كم چمونغا نو بي 10 का सुपर लेवल में इंपॉर्टेंट रूप से कि नो से तो याद नहीं है जो hypoxia or the sleep apnea at least of the digitation.